Hello children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter, Force Work in Energy. Learning objectives, force and its effects, types of forces, definition of work, simple machines and energy and its various forms. Force, all of us do some work. Some people work in factories and some in offices. Not only people, animals and machines also do work. We apply force in doing work. Do you know what is a force? A push or pull that can change the movement of an object is called a force. For example, you apply your own force to a bicycle when you pedal it. This force makes the bicycle start to move and speed up. हम डेली कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ ऑफिसेस में काम करते हैं, यहाँ तक कि जो एनिमल्स हैं, मशीन्स हैं, ये भी काम करती हैं. तो देखिए काम कब होता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट. एंड व्हाट इज फोर्स? अ पुश और पुल इज फोर्स. और इससे क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है वो आपका चेंज हो जाता है. Let us take some examples to understand the concept of force. In the game of tug of war, both the teams try to pull the rope towards their side. That is, they apply force to pull the rope towards their team. What happens in the game of wrestling? The two wrestlers push each other and try to make the other wrestler fall. That is, they apply force to push each other. In the game of tug of war, pull is the main force and the game of wrestling, push is the main force. अच्छा ये दोनों गेम्स देखिए, ये आपका टग ऑफ वॉर होता है. इसमें क्या होता है, दो टीम्स होती हैं और अपनी अपनी साइड पुल करती हैं, राइट. रोप को पुल करती हैं. तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं लेकिन पुल कर रहे हैं. अब रेसलर्स की बात करें, ये जो रेसलिंग कर रहे हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, राइट. तो जो दोनों ही गेम्स हैं इसमें क्या है आपका, जैसे टग ऑफ वॉर में आपका मेन फोर्स इज पुल एंड रेसलिंग की बात करें तो वहां पे आपका मेन फोर्स क्या है, पुश. When we push anything, we move it away from us. When we pull anything, we bring it closer. तो देखिए जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं तो हमें उसे अपने से दूर कर रहे हैं, लेकिन हम किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसे अपने पास लेके आ रहे हैं. A force can do many things. It makes things starts moving. स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन. फोर्स देखिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता है. किसी की स्पीड को बढ़ा सकता है, किसी की स्पीड को स्लो डाउन कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. देखिए आपको कितने सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि ये रेस्टिंग ऑब्जेक्ट फोर्स क्या करता है, उसको मूव करा देता है, राइट. मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करा सकता है. एंड थर्ड में आपका क्या है कि शेप ही ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है, राइट. एंड इसमें क्या है, देखिए किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है. इसके अलावा फोर्स क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. Types of forces. There are many types of forces, but we will learn about two of them. These two forces affect us all the time. Gravitational force. The force through which the earth pulls everything towards it is called gravitational force or simply gravity. When you throw any object high up, it comes back to the earth. This is because of the gravitational force of the earth. If there were no gravitational force, we would all be floating in the atmosphere. देखिए बहुत सारे फोर्सेस हैं बट हम जनरली दो ही की बात करेंगे. वो है आपका ग्रेविटेशन फोर्स. पहले बात करते हैं. तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, जो अर्थ हर टाइम अपनी तरफ चीज़ों को पुल करती है तो उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी. देखिए कोई भी चीज़ को अगर हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाता है. क्यों? बिकॉज अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, राइट. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम सारे एटमॉस्फेयर में ना तैरते रहते हैं. Frictional force. When two things rub together, there is a force at work called frictional force or friction. Friction slows down the movement. It is more on rough surfaces and less on smooth surfaces. It is very difficult to work on ice because the surface of ice is smooth and there is very little friction. Friction acts in the opposite direction of the applied force. देखिए जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं तो एक फोर्स आपका लगता है which is frictional force या friction. Friction का काम क्या होता है, ये मूवमेंट को स्लो डाउन करता है, ठीक है. अब ये रफ सरफेस पे ज़्यादा होता है और स्मूथ सरफेस पे कम होता है. तो इसीलिए आप देखते हैं कि आइस पे चलना ना बहुत मुश्किल हो जाए क्योंकि उसका सरफेस काफ़ी स्मूथ होता है और वहाँ पे लिटिल फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन जो है हमेशा ही वो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट. वर्क. We do many types of work every day, but in science, they all are not called work. If you are pushing a heavy stone and it doesn't move, then you are not doing any work. Similarly, if a man is standing with a heavy box on his head, but he doesn't move, he is not doing any work. When we apply a force on an object and it moves through a distance, we say that work is done. Work in science means a push or pull that moves an object through a distance. देखिए हम डेली बहुत सारे काम करते हैं, राइट. लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वर्क की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अलग है.
फॉर एग्जाम्पल, आप एक बड़े से पत्थर को पुश किए जा रहे हो काफ़ी घंटों से, आप पसीना पसीना हो गए, लेकिन वो मूव नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया। एक पर्सन है, उसने सर पे अपना हेवी लोड रखा हुआ है कई घंटों से, बट वो मूव नहीं कर रहा, दैट मीन्स उसने कोई वर्क ही नहीं किया। तो साइंस की लैंग्वेज में क्या है, वर्क का मतलब अ पुश और पुल, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करता है, राइट। Energy is the ability to do work. We need energy to do work. Our muscles produce force to do work. The muscles get energy from the food we eat. We would not be able to stay alive without the energy we get from food. Where does food get its energy from? The sun is the ultimate source of energy on the earth. Plants use the sun's energy light to make food. All other living beings depend on food prepared by the plants to get energy. Without the sun, there would be no life on the earth. Energy remains constant. It is neither lost nor gained. However, energy can be converted from one form to another. Energy का मतलब क्या होता है? Ability to do work. काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, राइट। हमारे जो मसल्स हैं वो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं काम करने के लिए। मसल्स को एनर्जी मिलती है किससे? खाना जो हम खाते हैं, राइट। तो अगर हम खाना नहीं खाएंगे और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं। तो ये फूड एनर्जी में कहाँ से आता है? आई मीन फूड में जो आपकी एनर्जी है वो कहाँ से आती है? एक्चुअली आपका जो सन है, दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, राइट। प्लांट जो है सन की एनर्जी यानी उसकी लाइट को यूज़ करते हैं, खाना बनाते हैं, एंड देन वो जो खाना बनाते हैं उसको फिर हम कंज्यूम करते हैं। एनर्जी आपकी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ना ये लॉस्ट होती है ना ही गेन होती है, बट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है वन फॉर्म टू अनदर। Forms of energy. Energy has many forms. Let us learn about some of them. Mechanical energy. Mechanical energy is of two types, potential energy and kinetic energy. Energy stored up for action is called potential energy. Water stored behind the dams has a potential energy. A body falling from a height also has potential energy. Energy due to motion of a body is called kinetic energy. A moving car, a van or a bus possesses kinetic energy. अब देखिए एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। सबसे पहले अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो उसके भी दो टाइप्स हैं, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, राइट। अब जो एनर्जी आपकी स्टोर्ड होती है कुछ एक्शन के लिए वो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आपका डैम्स में जो वाटर स्टोर्ड होता है उसमें आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। एक बॉडी जो हाइट से गिर रही है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। एंड आपकी एनर्जी जो बॉडी में मोशन की वजह से होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपकी मूविंग कार है, मूविंग वैन है, मूविंग बस है, इन सब ही में काइनेटिक एनर्जी होती है। Heat energy. Energy stored in steam is called heat energy. Heat energy is used to drive steam engines, cook food and warm rooms. Coal, wood, petrol and diesel have heat energy. अब हीट एनर्जी क्या है आपका? देखो आपकी जो एनर्जी स्टीम में स्टोर्ड होती है ना वो आपकी हीट एनर्जी होती है। हीट एनर्जी को हम यूज़ करते हैं स्टीम इंजन ड्राइव करने के लिए, खाना बनाने के लिए, रूम्स को वार्म करने के लिए। केमिकल एनर्जी. एनर्जी स्टोर्ड इन अ टॉर्च बैटरी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी. Electrical energy. The energy that comes from electricity is called electrical energy. Television, refrigerators, washing machines, fans and air conditioners make use of electrical energy. Electrical energy जो electricity से मिलती है and electrical energy आपके देखिए किस में यूज़ होती है? टेलीविजन आप चलाते हैं, AC चलाते हैं, फैंस चलाते हैं, etc. Magnetic energy. The energy stored in a magnet is called magnetic energy. In Japan, magnetic energy is used to move a train called maglev. जो मैग्नेट में एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक एनर्जी, और जापान में तो मैग्नेटिक एनर्जी को यूज किया जाता है ट्रेन को मूव कराने के लिए, जिसे कहते हैं मैग्लेव। साउंड एनर्जी. द एनर्जी स्टोर्ड इन अ थंडर इज कॉल्ड साउंड एनर्जी. इट कैन रैटल द विंडो पेन्स इन योर हाउस. थंडर आपने सुना होगा, जब थंडर स्टॉर्म आता है, राइट, तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है आपकी? Sound energy. Atomic energy. The energy stored in an atom is called atomic energy. Atom bombs make use of atomic energy. However, atomic energy should be used for making electricity. आपके जो एटम्स में एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज एटॉमिक एनर्जी. आपके जो एटम बॉम्ब्स होते हैं वो एटॉमिक एनर्जी का ही इसमें यूज़ होता है. हालांकि जो एटॉमिक एनर्जी है उसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ही यूज़ करना चाहिए. Sources of energy. The main source of energy on the earth are the sun, wind, water, Earth's interior and fossil fuels. Energy obtained from the sun is called solar energy. Solar energy can be used in solar cookers, solar heaters and solar calculators. Wind also has energy called wind energy. Wind energy is used to move things like windmills. Solar energy जो आपको sun से मिलती है उससे आप solar heaters
में इसको यूज़ कर सकते हैं, सोलर कैलकुलेटर सब सोलर एनर्जी से काम करते हैं। एंड विंड में आपकी होती है विंड एनर्जी, जिससे कि आप विंड मिल्स चलाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। Running water has mechanical energy. We use this energy to produce electricity in dams. Electricity produced from water is called hydroelectricity. The interior of the earth is very hot. It has a lot of energy called geothermal energy. This energy sometimes causes earthquake and volcanic eruptions. Coal, petrol and natural gas are called fossil fuels. These are the main source of energy nowadays. CNG, compressed natural gas, is a pollution-free fuel. अब देखिए आपका रनिंग वाटर, अभी जैसे आपने पढ़ा, उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, फिर इस एनर्जी से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी वाटर से प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अर्थ का इंटीरियर काफ़ी हॉट होता है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, जैसे कहते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है इससे कई बार क्या होता है, अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं। आपके फॉसल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हैं, ये आपके मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं आजकल। आपका CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपका क्या है, ये पोल्यूशन फ्री फ्यूल है। Energy can change its form. Energy can be changed from one form into another. For example, in bulbs and tube lights, electrical energy changes into light energy. Transistors and call bells change electrical energy into sound energy. Iron press and heaters change electrical energy into heat energy. A solar cooker changes solar energy into heat energy. अब देखिए एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, जैसे कि आपने बल्ब्स देखे होंगे या ट्यूबलाइट्स देखी होंगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। आपके जैसे ट्रांजिस्टर्स या कॉल बेल होती है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, साउंड एनर्जी में। आप जो कपड़ों पे आयरन करते हैं, राइट, या आपके जो हीटर्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। Simple machines. Sometimes we cannot carry out a job efficiently with our hands. We then take the help of some tools. A bottle opener to open the cork of a bottle, a hammer to drive a nail into a wall, and a pair of scissors to cut cloth are some simple tools we generally use in our daily life. Any tool or device that makes our work easier is called a simple machine. A simple machine helps us to do our work faster with less effort. Change the direction of force used. Some examples of simple machines are the lever, pulley, wheel and axle, screw, wedge and inclined plane. देखिए क्या होता है, कई बार हम अपने हाथों से ना किसी जॉब को, किसी पर्टिकुलर टास्क को एफिशिएंटली नहीं कर पाते, तो ऐसे टाइम पे हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कई बार जैसे बॉटल आप खोलते हैं ना, बॉटल ओपनर से, इसके बाद हैमर से आप क्या करते हैं, नेल में ड्राइव करते हैं, राइट, जब उसे आपको वॉल में डालना होता है, या पेयर ऑफ सीजर से हम क्या करते हैं, कट करते हैं, राइट, क्लोथ को या फिर पेपर को। तो कोई भी टूल या डिवाइस जो हमारे वर्क को आसान करता है उसे हम कहते हैं सिंपल मशीन। सिंपल मशीन क्या होता है कि हमारे काम को फास्ट कर देती है और जो डायरेक्शन है, फोर्स, उसको चेंज कर देती है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, देखिए सारे, ये आपकी सारी सिंपल मशीन्स हैं। Let us remember, a push or pull that changes the movement of object is called a force. The force through which the earth pulls everything towards us is called gravitational force. The force that develops when two things rub together is called frictional force. Work is done only when a force moves an object through a distance. Energy is the ability to do work. Energy can be changed from one form into another. Any tool that makes a work easier is called a simple machine. देखिए एक पुश और पुल को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स आपका जो अर्थ फोर्स लगाती है, जो पुल करती है सारी चीज़ों को, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एंड जब दो चीज़ों को रब किया जाता है साथ में, वहाँ से आपका फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। एंड वर्क डन कब होता है, जब एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराता है थ्रू अ डिस्टेंस। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। एंड जो टूल हमारे वर्क को ईजी करते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंपल मशीन्स। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आज इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।